हेलो फ्रेंड्स। अब आप लोगों का बोर्ड का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। अब आगे की ये टेंशन है कि अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाए। इसके लिए आप लोग सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि डेट पता है आप लोगों को 8 मई से लेके 1 जून तक टेंटेटिव डेट्स हैं, इसमें से देना है। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो ये सब जानकारी तो है आप लोगों को। लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी जानकारी आपकी होनी चाहिए। इसके लिए आप हमारे इस चैनल को देखें। आपके लिए हाजिर है मैथ्स जॉगर्स। आपको सारी जानकारी देंगे सीयूटी एग्जाम के, जो आपको बहुत जरूरी है जानना। तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये सीयूटी की बुकलेट है। इसमें बहुत सारी बातें दी हुई है जो कि आपको जानना चाहिए एग्जाम देने के पहले ही। तो जैसा आपको पता है कि 8 मई से लेके 1 जून के बीच में एग्जाम्स होने हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। आपको शिफ्ट्स के बारे में जानकारी दी जाएगी, टाइमिंग भी बताई जाएगी। ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन 60 मिनट है, ये आपको पता है। और द एग्जामिनेशन में बी हेल्ड ऑन मल्टीपल शिफ्ट्स डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड देयर कॉम्बिनेशन। तो कई शिफ्ट्स में एग्जाम होने हैं। द ड्यूरेशन ऑफ ईच पेपर विल बी 60 मिनट, तो 1 घंटे का पेपर होने वाला है। So the tests are scheduled in multiple shifts as the case may be. Each test within each shift is distinct and independent of the other. तो सब अलग अलग टेस्ट होने वाले हैं। However, the allotment of candidates to the shifts will be based on the options exercise and technical and administrative considerations. तो जैसे जैसे अपना ऑप्शन दिया है उस बेसिस से एग्जाम होना है। Admit cards will be issued for the courses opted by him or no request for a change of date or shift will be entertained. तो कोई भी चेंज अलाउ नहीं होगा डेट्स में। Candidates have to report for the slots as per the time stated in their respective admit cards. तो ध्यान से देखिए अपने एडमिट कार्ड और उसमें जो टाइम है उसको देखिए ध्यान से, कब आपको रिपोर्ट करनी है। तो सबसे बड़ी बात है इसमें, ये पहला पॉइंट है, candidates are advised to report at the examination center well in time, that is 2 hours before the commencement of the examination. तो ध्यान रखिए, आपको 2 घंटा पहले ही पहुंच जाना है एग्जामिनेशन सेंटर में, इसमें देर नहीं करना चाहिए। अगला पॉइंट, सेकंड पॉइंट, candidate should take their seats immediately after the opening of the examination hall. If the candidates do not report in time due to any reason, that is traffic jam, train, bus delay, etc., they are likely to miss some of the important instructions to be announced in the examination rooms halls. The NTA shall not be responsible for any delay. तो कोई भी जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दी जाएगी वो आपसे छूट जाएगी अगर आप देर से पहुंचते हैं। तो इस बात का ध्यान में रखिए कि तुरंत अपने सीट पे पहुंच जाएं। अगला इंस्ट्रक्शन, द कैंडिडेट must show on demand the admit card downloaded printed from the NTA website for admission in the examination room hall. The test center staff on duty is authorized to verify the identity of candidates and may take steps to verify and confirm the identity credentials. A candidate who does not possess a valid admit card and authorized photo ID shall not be permitted to take the examination under any circumstances by the center superintendent. मतलब आपको आई कार्ड ले जाना मस्ट है और आपको अलाउ नहीं किया जाएगा किसी भी हालत में अगर आप इसको नहीं ले जाते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, कहीं हड़बड़ी में छूट ना जाए घर में। अगला इंस्ट्रक्शन है, a seat indicating roll number will be allotted to each candidate. Candidate should find and sit in the allocated seats only. In case a candidate ventures to change his or her seat and does not sit on the seat allotted to him, her could face cancellation of candidature. No plea would be entertained in this regard. तो ध्यान से देखिएगा कि आप जो सीट पे जा रहे हैं प्रॉपर है कि नहीं, आप ही की सीट है कि नहीं, अच्छे से इसको चेक करके ही प्रवेश लीजिएगा। अगला इंस्ट्रक्शन, the candidate should ensure that the question paper available on the computer is as per his or opted subject indicated in the admit card.
In case the subject of the question paper is other than his or her opted subject, the same may be brought to the notice of the invigilator concerned immediately. आप देखिए कि प्रॉपर सेट ही आपको मिला है कि नहीं, अगर ऐसा नहीं है तो तुरंत इन्फॉर्म करिए। फिर अगला है द कैंडिडेट्स may approach the center superintendent invigilator in the room for any technical assistance, first aid emergency or any other information during the course of the examination. For any queries or issues regarding the test, the candidate may contact on helpline numbers available on the NTA website. तो किसी भी तरह का संकोच ना करें, कोई भी डाउट इस तरह की कोई भी हो तो आप तुरंत इन्विजिलेटर से संपर्क करिए। For any queries or issues regarding the computer-based test, the candidates may contact on helpline numbers available on the CUT UG website. तो देखिए ये बुकलेट है, यहाँ पे ये दिया है हेल्पलाइन पर, इसको मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, इसको देख लीजिए। तो ये नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी आपको अगर समस्या होती है तो। ये सारे इस बुकलेट में दिया हुआ है। फिर एक विशेष बात, in case a candidate by furnishing false information, his or candidature will be cancelled and his or result will not be declared. तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा, कोई भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं दीजिएगा जिससे आपको इस एग्जाम से निकाल दिया जाए। रही बात रीटेस्ट की, for those who are unable to appear on the scheduled date of the test for any reason, a retest shall not be held by the NTA under any circumstances. तो अगर आप रीटेस्ट के मूड में हैं तो किसी भी हालत में ये अलाउ नहीं होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि आपको ये एग्जाम इसलिए छूटना नहीं चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि फिर से दे देंगे, रिटेस्ट दे देंगे, तो ये अलाउ नहीं किया जाएगा, इस बात को नोट कर लें। अगला, all candidates shall ensure that the information like his or name, mother's name, father's name, gender, date of birth, category और PWD, status, mobile number, email address वगैरह वगैरह, photograph, signature, choice of cities for examination provided by them in their online application form is correct. ये सही है, ये चेक कर लीजिए। Candidates are advised to exercise the utmost care in filling of the correct details in the online application form. तो अब इसकी भी डेट पार हो चुकी है करेक्शन की, आशा है अपने से कोई गलती नहीं हुई है। Any request for change in the particulars and uploaded scanned images at any stage will not be considered by NTA under any circumstances. तो इसको फिर आगे एंटरटेन नहीं किया जाएगा। अगर आपने गलती किया है तो उसको अब सुधारने का मौका नहीं है। फिर अगला है, candidates are not allowed to carry instruments, ज्योमेट्री और पेंसिल बॉक्स। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह की चीजों को नहीं ले जाना है साथ में। फिर पर्स, ये सब भी नहीं लेना है। एनी काइंड ऑफ पेपर, स्टेशनरी, टेक्सचुअल मटेरियल, प्रिंटेड और रिटन मटेरियल, ये सब नहीं साथ में रखना है। ईटेबल्स, यहां तक कि पानी का बॉटल वगैरह भी, वाटर लूज और पैक्ड, किसी भी तरह का चीजें अलाउड नहीं है, इसको नोट कर लीजिए पहले से ही। और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, चाहे किसी भी तरह का, चाहे मोबाइल फोन हो, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर का, किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं ले जाना है। इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस विद फैसिलिटीज ऑफ कैलकुलेटर, तो कोई भी इस तरह की चीजों को आप कैरी नहीं कर सकते एग्जाम में, इसको भी विशेष तरीके से नोट कर लीजिए। ये सब चीजों को न ले जाना ही अच्छा है एग्जाम सेंटर तक। फिर candidates are requested to retain a copy of the confirmation page, admit card and scorecard of the CUT UG 2025। तो आशा ये सब चीज आप सुरक्षित रखे हैं। और candidates shall appear at their own cost of the at the center on the date and shift was indicated in their admit card issued by the NTA। तो ऑब्वियसली आप अपने खर्चे से ही जाएंगे, कोई आपको खर्चा नहीं देगा। Under no circumstances the choice of the cities for the center and shift provided in the admit card shall be changed। तो ये चेंज नहीं होने वाला है आपका चॉइस ऑफ सिटी वगैरह।
Candidates must carry the following documents on the day of examination at the test center. In the absence of these documents, candidates will not be allowed to sit for the examination. ये विशेष बातें हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके साथ होना चाहिए जिसके बगैर आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो कृपया इसको जांच ले एग्जाम देने से पहले कि ये आपके साथ में है, किसी भी हालत में ये छूटना नहीं चाहिए। वो क्या चीजें हैं ये आपके सामने अगले इसमें। तो एक तो है प्रिंट कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड अलोंग विथ सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग डाउनलोडेड फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट, ए क्लियर प्रिंट आउट ऑन A4 साइज पेपर ड्यूली फिल्ड इन। तो ये जो आपको एडमिट कार्ड मिला है इसकी कॉपी ये आपका पास होना चाहिए। फिर अगला है 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ होना चाहिए सेम एज अपलोडेड ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो जैसा आपका इसमें जो इस तरह का फोटो यहाँ लगा है इसी सेम फोटो आपको अलग से भी ले जाना है, इसको भी ध्यान रखिएगा। फिर है एनी वन ऑफ द ऑथराइज्ड फोटो आईडीज मस्ट बी ओरिजिनल, वैलिड एंड नॉन एक्सपायर्ड। तो आपके पास आईडी कार्ड्स होना चाहिए, ये स्कूल आईडी कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट, आधार कार्ड, उसमें फोटोग्राफ होना चाहिए, ई आधार कार्ड वगैरह वगैरह, क्लास 12 बोर्ड एडमिट कार्ड विथ फोटोग्राफ, बैंक पासबुक्स विथ फोटोग्राफ। तो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल फॉर्म में आपको पास होना चाहिए, इसमें से कोई भी एक। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, ये छूटना नहीं चाहिए। फिर आपको ये PWBD सर्टिफिकेट इशूड बाय द ऑथराइज्ड मेडिकल ऑफिसर क्लेमिंग द रिलैक्सेशन अंडर इस कैटेगरी। तो उसके सर्टिफिकेट्स आपको देना है रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन इन एन एग्जामिनेशन टू राइट एज पर एनेक्सर्स गिवन इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन। इस बात को ये अगर आप दुर्भाग्य से ऐसी कुछ है तो आपको इसको देना पड़ेगा सर्टिफिकेट। फिर ए सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन, इस तरह का पेन आपको यूज करना है जो ट्रांसपेरेंट हो, इस बात का भी ध्यान में रखा गया, इसी तरह का पेन आपको इस्तेमाल करना है। तो ये कुछ विशेष बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है एग्जाम की प्रिपरेशन के साथ साथ, ये सब चीजों को भी ध्यान में रखना है। और जिस दिन हम एग्जाम देने जाएंगे जल्दीबाजी में, हड़बड़ी में कोई गलती नहीं होनी चाहिए इस तरह से। बाकी मन लगा के आपको एग्जाम देना है, इसके लिए आप लोगों को शुभकामनाएं। तो अगर आपको ये पसंद आया है वीडियो तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी अगर क्वेरी हो मुझे इस ईमेल नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका अपना डाउट रेस कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम भी है स्वपन BNS 2024, उसमें आप उनको फॉलो कर सकते हैं। तो विथ गुड विशेस कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो, और आगे भी हम वीडियो लाने वाले हैं, कुछ और भी चीजें हैं जो आपको बतानी है अपार्ट फ्रॉम आपके एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, उसके लिए भी हम तैयारी कराएंगे बहुत जल्दी। तो विथ गुड लक, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।